Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with another video for you. In this video, we are going to again translation English to Hindi. So without wasting time, let's get started. But before we start, I wanna share you something. As you know, I always share with you something before start the video. So the video is doing also the same in the condition. But even though I wanna be share with you something, however, it is not important. But even though I think this is really important, that's why I'm sharing with you. And the problem is that the people often asking me that how to read and where to start. But even though one case that I often think about in my mind, and I think this is really important, and then I want to be a share with you, that's why. So one of the most common habit that sharing by to the most successful people in the readings, just like Elon Musk and Bill Gates, spending a lot of their time readings. They know that if they want to get better result, and they reading and they learned. So however, reading is a doesn't equally learning, and you can reading the 100 books, and but if you do it the for sake of okay readings and finishing and the books, if you will never get to the most out of it. But even though it is really mandatory, okay, sometimes you can be to instruction of your mind that which thing that you really want to do it, you have to be do it, you can passion to it, and and again until it is not comes true. Okay, the one thing that it is also important, that one of the most important thing that you have to need to understand before you start reading, okay, is to identify the what's the purpose why you do want to reading the books. Okay, that's why you are doing something. So that is all I want to share with you. So let's start our reading. And if you are agree with me, I know certain people are agree with me or not, but even though it is up to you, and if you are agree with me, then you have to starting do it right now. Okay, this is the time that you have to do something in your life, because the time of the age is also limited. Everything takes the time, and there's a limited to everything. So that's all I want to be sharing with you. Let's start our translation. The farmer and the serpent. किसान और सांप. इज दैट क्लियर? फार्मर को पेजेंट्स भी बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? पेजेंट्स, ऑल्सो नोन एज पेजेंट्स. सर्पेंट यानी कि सांप. ठीक है, इसे स्नैक भी बोलते हैं और वाइपर भी बोलते हैं, एज यू नो इट. लेट्स स्टार्ट द अनदर लाइन्स. देयर वंस लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ स्मॉल विलेज. देयर का मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्टिव यूज़ किया गया है, इसका मतलब वहाँ नहीं है. ओके, वंस यानी कि एक बार, लिव्ड यानी कि रहता था, आ मिस एक यानी पुअर फार्मर एक गरीब किसान, इन आ स्मॉल विलेज छोटे से गांव में. एक छोटे से गांव में एक बार एक गरीब किसान रहता था. इज दैट क्लियर द लाइन? ओके. द विलेज हैड बीन अफेक्टेड बाय ड्रॉट फॉर 3 years. ठीक है, यानी कि गांव 3 सालों से सूखेपन की चपेट में था, या फिर उस पर प्रभाव पड़ा था. अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना. ये टेंस जो है ना, हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है. ओके, तो उस पर किसकी सूखेपन की मार पड़ी थी? किसमें? उस गांव पर. उस गांव पे सूखेपन की मार पड़ने के कारण वो 3 सालों से सूखेपन में था. द फार्मर्स लैंड हैड ड्राइड अप. किसान की भूमि सूख चुकी थी. ठीक है, इज दैट क्लियर? द विंटर हैड सेट इन. सर्दी ने दस्तक दे दी थी. वन चिली इवनिंग. एक सर्दी की शाम. द फार्मर वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री इन हीज लैंड. द फार्मर यानी कि किसान, वॉज मिस था, रेस्टिंग यानी कि आराम कर रहा था, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी कि के नीचे, इन हीज लैंड अपनी भूमि में. एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने देखा, या फिर उसने जैसे ही अपने चारों ओर देखा, ही सो उसने देखा, अ सरपेंट एक सांप को, सिटिंग बाय अ बरो. इसे बरो बोलते हैं, बुरो नहीं बोलेंगे ना बरो बोलेंगे. इट इज़ कॉल्ड बरो. ओके, बरो यानी कि एक बिल के पास बैठा हुआ. इज दैट क्लियर? द सरपेंट लिव्स हियर. सांप यहाँ रहता है. थॉट द फार्मर, किसान ने सोचा. थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है. बट लेकिन, आई हैव नेवर वर्शिप्ड, लेकिन मैंने इनकी कभी पूजा नहीं की. दैट्स वाई, इसलिए, माई लैंड हैज़ ड्राइड अप. ठीक है, सॉरी, ड्राइड अप ड्यूरिंग द ड्राउट. यानी कि दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए. लैंड यानी कि भूमि, मेरी भूमि, हैज़ ड्राइड अप यानी कि सूख चुकी है, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द ड्राउट यानी कि सूखेपन के दौरान मेरी भूमि है सूख चुकी है. इज दैट क्लियर? हैंसफोर्थ, अब से, इसका मतलब होता है अब से, या फिर फ्रॉम दैट डे. ओके, आई विल वर्शिप द सर्पेंट रेगुलरली.
आई विल, मैं करूँगा वर्शिप यानी कि पूजा, वर्शिप का मतलब पूजा करना होता है, द सर्पेंट यानी कि सांप की, रेगुलर यानी कि नियमित तौर पे, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, ठीक है, रेगुलरली इसका मतलब। द फार्मर रेन होम एंड ब्रॉट सम मिल्क, फार्मर यानी कि किसान, रन यानी कि रन, रन की सेकंड फॉर्म रेन होती है, ठीक है, रन रेन रन, रन यानी कि दौड़ा या फिर भागा, होम घर, एंड ब्रॉट सम मिल्क और कुछ दूध लाया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, ब्रिंग मिस लाना और ब्रॉट मिस लाया, सम मिल्क यानी कि कुछ दूध। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, द वेजल ऑफ द मिल्क इन फ्रंट ऑफ द बरो एंड सैड। ही प्लेस यानी कि उसने रखा, द वेजल ऑफ मिल्क यानी कि दूध का कटोरा, इन फ्रंट ऑफ द बरो, बिल के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ओके, बरो यानी कि बिल के सामने, एंड सैड ओ का, और कहा, ओ सरपेंट, ए सांप, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, ठीक है। इसे डिड नोट को जब हम कंबाइंड कर देते हैं ना, डिडेंट यूज़ करते हैं, डिडेंट, ओके। अगर आपको मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में बोलना, तो आप आई डिड का यूज़ कर सकते हैं, डिड नॉट, नो, मैं नहीं जानता था, दैट की, यू लिव हियर, आप यहाँ रहते हैं, देयर फोर, इसलिए, देखो वहाँ पे दैट्स वाई और देयर फोर का मतलब, दोनों का मतलब होता है इसीलिए। आई डिडंट वर्शिप यू, मैं आपकी पूजा नहीं की। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बट नाउ, लेकिन अब से या फिर अब, आई प्रॉमिस टू वर्शिप यू एवरी डे, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पूजा हर रोज़ करूँगा। इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सेइंग दिस, यह कहकर, द फार्मर ऑफर्ड मिल्क टू द सर्पेंट, यह कहकर किसान ने ऑफर्ड यानी कि प्रस्तुत करना, पेशकश करना, मिल्क टू द सांप, मिल्क टू द सर्पेंट यानी कि सांप को दूध दिया, ठीक है। एंड वेंट होम, और घर चला गया। वैन ही रिटर्न, जब वह लौटा, रिटर्न का मतलब होता है लौटना, देखिए रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न होती है, ईडी लग गया यहाँ पर, टू हीज लैंड, अपनी भूमि पर। नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, जब वह अगली सुबह अपनी भूमि पर लौटा, ही सो, उसने देखा, समथिंग यानी कि कुछ, शाइनिंग यानी कि चमकता हुआ, समथिंग और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, और समथिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इन द वेजल यानी कि कटोरे में। वैन ही वेंट अ लिटिल क्लोज, जब, वैन का मतलब होता है जब, ही यानी कि वह, वेंट अ लिटिल क्लोज, जब उसके थोड़ा सा वो नज़दीक गया, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक जाना, अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, अ लिटिल क्लोज। ही सो, उसने देखा, अ गोल्डन कॉइन इन द वेजल, एक सोने का सिक्का, गोल्डन कॉइन का मतलब होता है सोने का सिक्का, इन द वेजल यानी कि कटोरे में। इज दैट क्लियर? फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरी डे, द फार्मर वुड ऑफर मिल्क टू द सर्पेंट एंड गेट अ गोल्डन कॉइन एंड रिटर्न। उस दिन से द फार्मर यानी कि किसान, वुड यानी कि करने लगा, जैसे कि आई यूज़ टू, जैसे कि मैं पहले खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले अ लॉट, और वो करने लगा, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वुड का यूज़ किया, यानी कि फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। करने लगा यानी कि देने लगा, ऑफर्ड यानी कि प्रस्तुत करने लगा, मिल्क यानी कि दूध, टू सर्पेंट यानी कि सांप को, एंड और, गेट यानी कि प्राप्त करना, आमिस गोल्डन कॉइन यानी कि बदले में उसे एक गोल्डन कॉइन मिलता है, यानी कि सोने का सिक्का मिलता था, ओके। वन डे, एक दिन, द फार्मर हैड टू गो टू अनदर विलेज फॉर सम वर्क, एक दिन किसान को, हैड टू का मतलब होता है जाना पड़ा, ठीक है। जब आपको बोलना हो पास्ट में कि मुझे वो काम करना पड़ा, आई हैड टू डू, और मुझे मतलब बिल पे करना पड़ा, आई हैड टू पे द बिल, सो आप ऐसे यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में यूज़ करें तो आप हैव टू का यूज़ करेंगे, जैसे कि मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क। लेकिन अगर आपको बोलना है पास्ट में तो आप बोलेंगे हैड टू का यूज़ करके। इज दैट क्लियर? गो टू अनदर विलेज यानी कि उसे दूसरे गाँव में जाना पड़ा, फॉर सम वर्क यानी कि कुछ काम के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, कुछ यानी कि सम का मतलब होता है कुछ, वर्क यानी कि वर्क, काम। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने, देखिए आस्क के ना कई यूज़ होते हैं, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, ऑर्डर देना भी होता है। ही आस्क, उसने कहा, हिज सन, अपने पुत्र से, टू ऑफर्ड मिल्क टू द सर्पेंट एवरी डे, टू ऑफर यानी कि प्रस्तुत करने के लिए या फिर देने के लिए, मिल्क टू द सर्पेंट यानी कि सांप को, एवरी डे हर रोज। इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। दैट इवनिंग, उस शाम, द सन वेंट टू द सर्पेंट टू ऑफर सम मिल्क,
द सन यानी कि पुत्र यानी कि बेटा, किसका, फार्मर का बेटा, वेंट टू सरपेंट यानी कि सांप के पास गया, टू ऑफर सम मिल्क, दूध देने के लिए या फिर प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, देयर यानी कि वहाँ, अगली सुबह, ही सो उसने देखा, अ गोल्डन कॉइन एक सोने का सिक्का, इन द वेजल यानी कि कटोरे में या फिर पतीला ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कटोरा ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सूट हो रहा है, कटोरे में ही दूध देते हैं भाई, वेजल। द सन थॉट, पुत्र ने सोचा या फिर बेटे ने सोचा, दिस सरपेंट इज़ वेरी स्टिगी, स्टिगिंग का मतलब स्टिंगी, स्टैंजी का मतलब पता क्या, स्टैंजी का मतलब होता है कंजूस, इसे हम माइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो पुत्र ने सोचा कि दिस सरपेंट यानी कि यह सांप, इज मिस है, वेरी यानी कि बहुत, स्टैंजी यानी कि बहुत ही कंजूस सांप है। आई एम श्योर मुझे यकीन है, देयर आर काउंटलेस गोल्डन कॉइन्स इन इट्स बरो, मुझे यकीन है, देयर आर यानी देयर, यहाँ पे देखो मैंने पहले बता रही हूँ इंट्रोडक्टिव यूज़ किया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता कि डमी वर्ड्स है, ओके। आर यानी कि हैं, काउंटलेस यानी कि अनगिनत, गोल्डन कॉइन सोने के सिक्के, इन इट्स बरो इसके बिल में अनगिनत सोने के सिक्के हैं, मुझे यकीन है। इज दैट क्लियर? चलिए। येट फिर भी, इट्स गिव ओनली वन गोल्डन कॉइन एवरी डे, फिर भी गिव्स यानी कि इट्स यानी कि देता है, फिर भी हमें ये ओनली यानी कि केवल, वन मतलब एक, गोल्डन कॉइन एवरी डे हर रोज़ हमें ये फिर भी एक गोल्डन कॉइन देता है, एक गोल्डन का सिक्का ही देता है। इफ़ आई किल्ड दिस सरपेंट, इफ़ यानी कि अगर, आई किल अगर मैं इस सरपेंट को मार दूँ, इस सांप को मार दूँ, आई विल गेट मुझे मिलेंगे या फिर मैं प्राप्त करूँगा, ऑल द गोल्डन कॉइन सभी सोने के सिक्के, एट वंस एक बार में, ठीक है, एक साथ भी होता है इसका मतलब, ओके। नेक्स्ट डे अगले दिन यानी फिर अगली सुबह, वैन द सन वेंट टू द ऑफर मिल्क टू द सरपेंट, वैन यानी कि जब, द सन यानी कि पुत्र, वेंट टू ऑफर यानी कि प्रस्तुत करने के लिए, दूध प्रस्तुत करने के लिए सांप के पास गया, ही हिट इट ऑन इट्स हेड, ही हिट यानी कि जब हम किसी के स्टिक से मारते हैं ना, हिट करते हैं एकदम से किसी चीज़ से, समथिंग दैट यू आर विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, समटाइम यू आर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, यू आर स्टिक एंड समटाइम यू आर सेटल्ड समवंस, ओके, देन यू कैन यूज टू इट। ही हिट यानी कि उसने मारा, इट यानी कि उसके, ठीक है, ऑन इट्स हेड यानी कि उसके सिर पर मारा, विद अ स्टिक यानी कि एक डंडी से। द सरपेंट वॉज फ्यूरियस, द सरपेंट वॉज फ्यूरियस का मतलब होता है नाराज, यानी कि सांप नाराज हो गया। इट बीट द फार्मर सन, उसने क्या करा, ही बाइट द फार्मर सन, उसने पुत्र के यानी कि फार्मर के यानी कि किसान के बेटे के काट लिया, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। इज दैट क्लियर? द सरपेंट टू वॉज इंजर्ड बैडली, ठीक है, द सरपेंट यानी कि सांप, टू मतलब भी, वॉज यानी कि था, इंजर्ड बैडली यानी कि बुरी तरीके से घायल, इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, चोट लगना, जराम राशि, ठीक है, वाउंड सरपेंट, ओके, यानी कि सांप भी घायल हुआ, बैडली यानी कि बुरी तरीके से, ऑन इट्स हेड यानी कि उसके सिर पर जो था वो इंजर्ड यानी कि घायल हो गया था बुरी तरीके से। राइटिंग इन पेन इट्स यानी कि दर्द में कहराना, कौन कहरा रहा था भाई, सरपेंट। स्लीथर्ड स्लोली इनटू हिज बरो यानी कि रेंगता हुआ या फिर लुढ़कता हुआ, मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है हिंदी में जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे, यानी कि स्लीथर्ड स्लोली इनटू इट्स बरो, वह लुढ़कता अपने बरो में यानी कि बिल में चला गया क्योंकि वो बैडली इंजर्ड था। द फार्मर्स रिलेटिव परफॉर्म द फ्यूनरल राइट्स ऑफ द फार्मर्स सन, द फार्मर्स रिलेटिव यानी कि किसान के रिश्तेदार, परफॉर्म, देखिए परफॉर्म का मतलब तो प्रदर्शन करना होता है, लेकिन क्या किया यहाँ पे, उन्होंने कुछ काम किया है इसलिए यहाँ पे परफॉर्म्ड का यूज़ किया गया, ठीक है। द फ्यूनरल राइट्स ऑफ द फार्मर सन, किसान के बेटे का अंतिम संस्कार किया, किसने, किसान के यानी कि किसान के रिलेटिव यानी कि रिश्तेदारों ने किया। वैन द फार्मर्स रिटर्न होम, वैन कि जब किसान घर लौटा, ही वॉज शॉक्ड टू हियर अबाउट द डेथ,
ही वो शॉक्ड यानी कि वो आश्चर्य था बिल्कुल ही सुन के ना, शॉक्ड लग गया था उसे, किसी को शॉक्ड लग जाता है कुछ बात सुन के, तो वो शॉक्ड रह गया था, बिल्कुल दंग रह गया था सुन के कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, ऑफ हिज सन यानी कि उसके पुत्र की। ही वॉज एंग्री विद द सरपेंट, वो सांप से नाराज हुआ यानी कि नाराज था। ही वॉज एंग्री, वह नाराज था, विद द सरपेंट यानी कि सांप से। बट लेकिन, व्हेन द सरपेंट टोल्ड हिम, जब सांप ने उसे बताया, व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, वास्तव में क्या हुआ था। द फार्मर सैड, किसान ने कहा, ओ सरपेंट, हे सांप, आई नो, मैं जानता हूँ, इट वॉज माई सन्स फॉल्ट, ये मेरे पुत्र की गलती है। आई अपोलोजाइज ऑन इट्स बिहाफ, मैं उसकी ओर से माफ़ी चाहता हूँ या फिर माफ़ी मांगता हूँ। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, बिहाफ मतलब की ओर से, किसी और की तरफ से, ठीक है। द फार्मर्स देन ऑफर्ड सम मिल्क टू द सरपेंट, द फार्मर्स यानी कि किसान ने, देन यानी कि फिर किसान ने ऑफर यानी कि प्रस्तुत किया, सम मिल्क यानी कि कुछ दूध, टू द सरपेंट यानी कि किसान को, एंड अगेन सैड और फिर कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी माई सन, प्लीज़ फॉरगिव माई सन, मेरे पुत्र को माफ़ कर दीजिए। ओके। द सरपेंट सैड, सांप ने कहा, लुक एट द फ्यूनरल पायर्स ऑफ योर सन, अपने पुत्र की अंतिम संस्कार को देखो, एंड लुक एट माई इंजर्ड हेड, और मेरी इंजर्ड यानी कि मेरी जो चोट है उसे देखो, मेरे सिर की चोट को देखो। इट वॉज नीदर योर सन फॉल्ट, ना तो ये तुम्हारे पुत्र की गलती है, और नॉर माइन, और ना ही मेरी। वॉट हैज़ हैपन्ड वॉज ए इनएविटेबल, ठीक है, जो हुआ वह एक क्या था, अनिवार्य था या फिर अपरिहार्य था। वी आर हेल्पलेस अगेंस्ट द फेट, हम भाग्य, वी आर हेल्पलेस यानी कि हम मजबूर हैं, अगेंस्ट फेट यानी कि भाग्य के सामने हम मजबूर हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज द स्टोरी, नाउ दिस इज फिनिश्ड, एंड you have to be subscribe my YouTube channel. If you like my video, please press the bell icon so you can get all the notification on the time. Thank you so much. Bye bye.